morning friends. Today we're going to start with next topic under chapter 2, that is active and passive voice. लेकिन इसमें डिटेल में जाने से पहले just we'll revise what we have done in the previous lecture. Initially we have learned about basics of grammar. Under that we have studied about what is a subject, what is an object, what is a phrase, what is a clause. There are two types of clauses. One is an independent or a main clause and second one is a dependent or a subordinate clause. उसके बाद अपन ने different types of verbs we have seen, then different types of phrase we have seen, different types of complements we have seen. So all these are just basic. You don't have to go into detail and all this, just revise what we have done in a class. But what is most relevant is आपके types of sentences. Questions are generally asked as regards to types of question, the types of sentences, then active and passive voice and direct and indirect speech. तो previous lecture में we have seen के different types of sentences based on functions क्या होते हैं. There are 4 types of sentences based on functions. One is declarative, where you give a declaration. Then there is a imperative, there is a suggestions or a command under imperative type of sentences. Then you have interrogative, it is a question based sentences. And last one we have referred is types of sentences में last one is exclamatory sentences, that is where you express feelings, that is exclamatory sentences. आप आपका खुशी का इज़हार कर रहे हो या दुख का इज़हार कर रहे हो तो that is called as an exclamatory sentences. So these were sentences based on functions. उसके बाद we have seen sentences based on structure. Again 4 types. One is a simple sentences, second one is a compound sentences, third one is a complex sentence, and fourth one is a complex compound or a compound complex sentence. मैंने आप लोगों को एक एक्सरसाइज दिया था. आई होप यू हैव कंप्लीटेड दैट एक्सरसाइज. तो सिंपल सेंटेंस में क्या होता है, देयर इज ओनली वन मेन क्लॉज, there is no subordinate clause. It is a complete sentence in itself. In a compound sentence there is a 2 main clause and they are related. They are joined either by a conjunction. Those conjunction can be a coordinating conjunction or correlative conjunction, or 2 sentences may be joined by a semicolon or a colon. Then there is a complex sentences where there is a one main clause and one or more subordinating clause. तो वहाँ पे भी sentences joined रहेंगे और sentences will be joined by a subordinating conjunction. और last आपने देखा था compound complex sentences where there will be minimum 2 main clause. 2 main clause से ज़्यादा भी हो सकते हैं लेकिन कम से कम 2 main clause रहेंगे और एक या एक से ज़्यादा आपका subordinating clause रहेगा. यानी when you have 2 main clause and one or more than one subordinate clause, it will be called as a compound complex or complex compound sentence. अब आते हैं आज के टॉपिक पे, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस. अब एक्टिव और पैसिव वॉइस ये आपने 11th और 12th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा डिटेल में देखते हैं एंड जस्ट विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि एग्जामिनेशन में हाउ यू शुड आंसर. एक्टिव वॉइस को अगर पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए बोला गया है तो किस तरीके से आपको कन्वर्ट करना है, क्या रूल आपको फॉलो करना है. यू आर अवेयर विथ के हर एक पर्टिकुलर सेंटेंस में यू हैव अ सब्जेक्ट प्लस वर्ब एंड प्लस ऑब्जेक्ट. ये 3 चीज़ यू कैन फाइंड दैट इन एवरी सेंटेंस. तो सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और आपका ऑब्जेक्ट होता है. तो ये 3 चीज़ आपके हर सेंटेंसेस में आपको मिलेंगी. सब्जेक्ट को ने करने वाला पर्सन, दैट इज कॉल्ड एज अ सब्जेक्ट. वर्ब क्या, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट इज जिसके ऊपर सब्जेक्ट एक्शन कर रहा है, तो दैट इज कॉल्ड एज एन ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट वी हैव सीन देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट. वन इज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और वन इज एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. फाइन. तो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट मिला के जनरली सेंटेंस बनता है. और यहाँ पे एक्टिव वॉइस में इसी तरीके के सेंटेंस फ्लो होते हैं वेयर सब्जेक्ट जो करने वाला है
then there is a verb, that is a action, and then there is an object जिसके ऊपर subject action कर रहा है, जिसके ऊपर action हो रहा है, that is called as an object. तो ये होता है आपका active voice. Active से passive में जब आप convert करते हो, you can find that कि object subject की place पे आ जाता है और subject object की place पे आ जाता है, बराबर. ये प्लेसेस अपने चेंज कर लेते हैं और वर्ब का टेंस जो है वो चेंज हो जाता है डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द सेंटेंस. तो ये होता है आपका एक्टिव और पैसिव वॉइस. हालांकि दोनों सेंटेंसेस का मीनिंग इज सेम. द ओनली थिंग इज फॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस गेट्स डिफर अंडर द एक्टिव एंड द पैसिव वॉइस. एक्टिव वॉइस विल जनरली हैव अ सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट जो कर रहा है, ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर एक्शन हो रहा है. ये दोनों भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अपनी प्लेसेस पैसिव वॉइस के अंदर चेंज कर लेते हैं, बराबर. तो दिस इज व्हाट द क्वेश्चन इज जनरली आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन. दे विल गिव यू वन क्वेश्चन एंड दे विल गिव यू 4 ऑब्जेक्टिव एंड दे विल आस्क यू कि एक्टिव वॉइस को अगर पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है तो ये 4 ऑब्जेक्टिव में से कौन सा करेक्ट आंसर रहेगा. इस क्लास में मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताऊंगा जहाँ पे यू कैन इट इज इजी फॉर यू to answer the question where it has been asked for conversion of active to passive voice. We'll see those tricks. But before going into those tricks detail, just we'll read what they have given in the module. Page number is 2.11. Voice is that form of verb which shows whether what is denoted by the subject does something or has something done to it. बराबर. Subject जो कर रहा है, बराबर, या जो जिसने कर चुका है, तो दैट इज कॉल्ड एज अ सब्जेक्ट. व्हाट इट सेज, एक्टिव वॉइस, अ वर्ब इज सेड टू बी इन एक्टिव वॉइस. नाउ sentences is not active. It is saying a verb is said to be in active voice when its form shows that the person or thing denoted by the subject does something that is इट इज द डूअर ऑफ द एक्शन. यानी वर्ब से आपको ये समझ में आएगा कि सब्जेक्ट कौन सा है और वो क्या कर रहा है, बराबर. तो जो सब्जेक्ट जो काम करता है वो किस तरीके से समझ में आएगा, ऑन द बेसिस ऑफ टेंस. दैट इज वर्ब के टेंस से यू विल गेट अंडरस्टैंड दैट कि सब्जेक्ट किसके ऊपर क्रिया कर रहा है, किसके ऊपर एक्शन कर रहा है. It is preferable to use the active voice whenever possible for clarity, conciseness, and for conveying the message more effectively. Passive voice sentences often use more words, can be vague. Vague means unnecessary words, useless general words, and can lead to a tangle of prepositional phrases. We are aware with what is a phrase. There are different types of phrase. One is a prepositional phrase, second one is a noun phrase, and third one is a verb phrase. बराबर. prepositional phrase यानी जहाँ पे preposition से phrase will be started, यानी it will move from a preposition, so that is called as a prepositional phrase. Now they have given some of the example of active voice. Active voice का एक simple example लेके समझने की कोशिश करते हैं. For example, you see that कि Ram is playing cricket. ये हो गया आपका एक्टिव वॉइस. नाउ अब इस सेंटेंस में आप मुझे बताइए कि व्हाट इज अ सब्जेक्ट. तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे इस सेंटेंस में? सब्जेक्ट है आपका राम, इज प्लेइंग है आपका वर्ब, एंड इट इज अटैच्ड विद अ ऑक्सिलरी वर्ब और अ हेल्पिंग वर्ब इज, एंड ऑब्जेक्ट क्या है आपका? क्रिकेट. तो यहाँ पे ये बोला जाएगा कि ये आपका एक्टिव वॉइस है. तो अगर इस एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है तो यू कैन सी टू इट के ये जो आपका ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा और आपका सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा, एंड अकॉर्डिंगली इट विल बी चेंज. There are some important tricks which I am going to explain you today for conversion of active voice into passive voice. Further, what they have given certain example, just we'll read those example and we'll try to find out okay, what is a subject and what is an object. This is very important in every sentence, because if you make a mistake in identifying the subject and the object, the entire process will get changed and the answer will be incorrect. So what they have given, Rohit wrote a story on the wall. Who wrote the story? तो रोहित. तो यहाँ पे रोहित क्या हो गया? आपका रोहित हो गया आपका सब्जेक्ट, रोट हो गया आपका वर्ब, और ऑन द वॉल किसके ऊपर एक्शन हो रहा है? तो वॉल के ऊपर एक्शन हो रहा है, तो वॉल इज योर ऑब्जेक्ट. सिमिलरली यू कैन सी दिस, सानिया sang a song.
Sanya is a subject, object is a song. Radha hit the boy, Radha is a subject, hit is a verb, and the boy is a object. Amit read the letter, Amit is a subject, read is a verb, and the letter is a object. Have you done anything about a room? Have you done anything about a room? Who is doing? Have you. So that is you is a subject, and किसके ऊपर बोल रहा है वो? room, and room is an object. We have booked a room for you in the Grand Hotel. Who have booked? We have booked. So we is a subject. Have booked is a verb attached with an auxiliary verb, and a room जिसको बोला जाएगा ऑब्जेक्ट. तो इस तरीके से सेंटेंस फॉर्मेशन होता है इन द केस ऑफ एन एक्टिव वॉइस. तो पैसिव वॉइस के बारे में क्या बोल रहा है देखिए. अ वर्ब इज सेड टू बी इन पैसिव वॉइस. अगेन एक्टिव वॉइस में भी बोला था कि वर्ब के बारे में क्या बोला था देखिए यहाँ पे एक्टिव वॉइस के अंदर क्या बोला गया था. अ वर्ब इज सेड टू बी इन एक्टिव वॉइस व्हेन इट फॉर्म शोज द पर्सन और थिंग डिनोटेड बाय सब्जेक्ट डज समथिंग, दैट इज इट इज अ डूअर ऑफ द एक्शन. यानी वर्ब इज इन एक्टिव वॉइस. सेंटेंस के बारे में नहीं बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है, वर्ब को एक्टिव वॉइस में कब, वर्ब एक्टिव वॉइस में कब बोला जाएगा, जब वो बताता है कि पर्सन या फिर जो चीज है डिनोटेड बाय द सब्जेक्ट डज समथिंग, वो बताता है कि सब्जेक्ट कुछ कर रहा है. तो अगर वर्ब आपको बताता है कि सब्जेक्ट कुछ कर रहा है तो दैट इज इन एक्टिव वॉइस. पैसिव वॉइस में क्या होता है, अगेन इट सेज अबाउट अ वर्ब. अ वर्ब इज सेड टू बी इन एक्टिव पैसिव वॉइस व्हेन इट फॉर्म शोज दैट द पर्सन और थिंग डिनोटेड बाय द सब्जेक्ट हैज डन समथिंग टू इट, दैट इज इट इज अ रिसीवर ऑफ द एक्शन. तो यहाँ पे एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट इज अ डूअर ऑफ द एक्शन, और यहाँ पे सब्जेक्ट इन द केस ऑफ पैसिव वॉइस इज अ रिसीवर ऑफ द एक्शन. यानी जिसके ऊपर एक्शन हो रहा है वो सब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा इन द केस ऑफ ए पैसिव वॉइस. तो यहाँ पे क्या बोला है, दे हैव गिवन सर्टेन इंपॉर्टेंट रूल्स एज रिगार्ड्स टू पैसिव सेंटेंस. Though active voice is preferred mode of communication, there are sometimes good reason to use the passive voice. It is generally said that you should avoid using the passive voice sentences. क्यों बोला गया ऐसा? क्योंकि पैसिव वॉइस के केस के अंदर अननेसेसरी डिटेल आप इनकॉर्पोरेट करते हैं जिसकी आपको जरूरत नहीं है. तो इसीलिए बोला गया है कि यू शुड अवॉइड ट्राई सेंटेंसेस विद पैसिव वॉइस. तो एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस जनरली प्रीफर्ड किए जाते हैं. लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि कुछ इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस है या कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस है जहां पे आपको एडवाइस किया गया है यू शुड यूज अ पैसिव सेंटेंस. तो क्या बोल रहा है देखिए, कहाँ कहाँ आपको रीजंस दिए गए, गुड रीजंस टू यूज द पैसिव वॉइस. टू एम्फसाइज द एक्शन rather than the actor. यानी जहां पे करने वाला इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन जो पर्सन ने जो काम किया है वो काम ज्यादा इंपॉर्टेंट है rather than उस काम को करने वाला. यानी एक्टर इज नॉट इम्पॉर्टेंट बट व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट इज अ एक्टिंग. जो उसने काम जो चीज किया है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू द पर्सन हु इज डूइंग. तो in such a case it is said that you should go with a passive sentence. What it has been said, the GST bill was passed in the parliament. The GST bill was passed in the parliament. Now action क्या हुआ है, GST bill पास हुआ है, बराबर. पास करने वाला कौन है, लोकसभा ने पास किया, राज्यसभा ने पास किया, फिर प्रेसिडेंट ने उसका एसेंट दिया. तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, सभी लोगों को पता है कि कोई भी पर्टिकुलर एक्ट ये रूट के थ्रू ही पास होता है. तो करने वाला इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन उसने क्या काम किया है वो इंपॉर्टेंट है. तो यहाँ पे कौन सा काम इंपॉर्टेंट हुआ है, जीएसटी बिल. तो हियर इट हैज बीन सेड दैट द जीएसटी बिल वाज पास्ड इन द पार्लियामेंट. सेकंड, टू कीप द सब्जेक्ट एंड फोकस कंसिस्टेंट थ्रू आउट अ पैसेज. थ्रू आउट कंसिस्टेंसी रखना है आपको उस ऑब्जेक्ट के बारे में, तो देन यू शुड गो विद अ पैसिव वॉइस. आफ्टर अ लेंथी डिस्कशन the decision was taken that discipline must be maintained in the college campus. What is important is to maintain the discipline. To maintain the discipline is very very important. तो यहाँ पे again
सब्जेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो चीज हो रही है वो इंपॉर्टेंट है, जो नतीजा निकल के आया वो इंपॉर्टेंट है, तो वहां पे पैसिव वॉइस के थ्रू आप जाओगे। थर्ड क्या बोल रहा है देखिए, द स्पीकर इज बीन डिस्क्रीट बाय नॉट नेमिंग द पर्सन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी डीड और एक्शन। तो यहाँ पे क्या बोला गया है आपको कि द स्पीकर इज बीन डिस्क्रीट। डिस्क्रीट का मीनिंग है कि सावधान, कॉशियस। ही डजंट वांट टू ईट, अगर वो किसी को नेम कर देता है तो बवाल मच जाएगा, और वहां पे उसके पास अगर एविडेंस नहीं है तो ही डजंट वांट टू नेम द पर्सन जिसने ये एक्शन किया है, तो उस केस में सब्जेक्ट विल बी अवॉइडेड। तो व्हाट इट सेज, द मैसेज हैज बीन मिस इंटरप्रेटेड। Now, who is misinterpreted? तो यहाँ पे बोला नहीं गया। अब यहाँ पे क्या है कि जनरली मीडिया के केस में होता है कि बहुत सारे मीडिया जो होते हैं वो मिस कम्युनिकेशन करते हैं, वो जो आप बोलते हो वो हालांकि उसमें प्रिंट मीडिया में निकालते हो या न्यूज चैनल के अंदर कुछ और बोला जाता है, उसका कंक्लूजन कुछ और निकाला जाता है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि सावधान, डिस्क्रीट। तो द स्पीकर इज बीन डिस्क्रीट बाय नॉट नेमिंग द पर्सन, ही डजंट वांट टू नेम द पर्सन। So here you will use a passive voice. Then to describe a condition in which the actor is unknown or unimportant. Same thing जो पहला बोला गया था कि एक्टर इम्पोर्टेंट नहीं है या फिर एक्टर पता ही नहीं है, करने वाला पता ही नहीं है, तो you go with the passive voice. The public building were damaged in the riots. Who has damaged? There may be n number of person who might have damaged the building. So you cannot name each and every person. So here you don't want to name them. Everyone are aware. यानी even if you don't mention in this particular sentence, you are aware कि किसने damage किया है, तो उसको mention करने की जरूरत नहीं है, आप उसको ignore करेंगे। To create an authoritative tone, authoritative यानी dictatorship, आप किसी को commanding position में यानी commanding position use कर रहे हो, तो in that case you are going to use a passive voice. Entry into the restricted area is forbidden. Entry in the restricted area is forbidden यानी मना किया है, आपको वहां नहीं जाना है। In most newspaper headlines, as the news action is more important than the doer, जो करने वाला है again not important है। Nagpara destroyed by cyclone Fury. So these are some of the examples they have given where the passive voice is preferred as compared to active voice, but in most of the cases it is generally said that you should use an active voice and don't use a redundant words. Avoid using a redundant one, that is avoid using the passive voice. उसके बाद passive voice के कुछ examples दिए गए, we'll just go through that. क्या बोला गया है देखिए, यहाँ पे बोला गया है examples of passive voice. A story was written on the wall by Rohit. तो who has written? रोहित has written. तो रोहित सब्जेक्ट है और किसके ऊपर लिखा गया है? वॉल के ऊपर लिखा गया है। वॉल इज एन ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पैसिव सेंटेंस के अंदर, पैसिव वॉइस के अंदर वॉल जो ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट हो गया, और करने वाला जो सब्जेक्ट रोहित था वो ऑब्जेक्ट हो गया। अ सॉन्ग वॉज संग बाय सानिया, द बॉय वॉज हिट बाय राधा, द लेटर वॉज रेड बाय अमित। नाउ यू कैन सी इन ऑल दिस सेंटेंसेस जनरली वर्ब के फॉर्म जो है वो चेंज हो जा रहे हैं। तो क्या बोला गया, एक्टिव और पैसिव वॉइस दोनों के अंदर वर्ब फॉर्म को ही क्रक्स बनाया गया है, वर्ब फॉर्म को ही वहाँ पे डिफाइन किया गया है कि हाउ द वर्ब फॉर्म चेंजेस फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। तो आपको यहाँ पे वर्ब फॉर्म पे ध्यान देना है कि एक्टिव वॉइस के जनरली वर्ब चेंजेस इन द पैसिव वॉइस, और कुछ वर्ब्स ऐसे जो एक्टिव और पैसिव वॉइस में चेंज नहीं होते, वो सेम रहते, दैट वी आर गोइंग टू आल्सो रिफर टुडे। कंपनी टारगेट्स आर सेट एवरी ईयर, द फैक्ट्री वाज सेट अप इन 1985 एंड सो ऑन। अब वो क्या बोल रहा है, रूल्स फॉर चेंजिंग एक्टिव इनटू पैसिव वॉइस। ये रूल्स में डिटेल में जाने से पहले मैं आप लोगों को एक ट्रिक, इंपॉर्टेंट ट्रिक बताना चाहता हूँ। जैसे कि यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या बोला गया है कि वर्ब फॉर्म विल चेंज फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस। अगर सपोज फॉर एग्जांपल एक्टिव वॉइस के अंदर अंडर एक्टिव वॉइस इफ वर्ब इज इन कंटिन्यूस टेंस,
present continuous और past continuous. I hope you are aware with a continuous tense. Continuous यानी जो क्रिया चल रही है, that is called as a continuous. For example, Meera is eating chocolates. Meera is eating chocolate. Now in this case you can see this कि आपका जो verb है वो continuous form के अंदर है. Verb क्या है यहाँ पे? You can see this. This is a verb. This is a subject and this is an object. और ये वर्ब है आपका is eating. Continuous का मीनिंग है जनरली इट एंड्स विथ ing, तो दैट इज कॉल्ड एज अ कंटिन्यूस टेंस. प्लेइंग क्रिकेट, ईटिंग चॉकलेट, ईटिंग फूड, गोइंग टू स्कूल, तो ये सब क्या हो गया? ing फॉर्म में हो गया. इट विल बी कॉल्ड एज एन कंटिन्यूस. तो यहाँ ट्रिक क्या बोल रहा है कि अगर एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस अगर है और उसमें वर्ब फॉर्म इज इन कंटिन्यूस टेंस, तो वो पैसिव में जब आप कन्वर्ट करोगे उसमें हमेशा इट विल बी अकॉम्पनीड बाय बीइंग. पैसिव वॉइस में जब आप उसको कन्वर्ट करोगे इट विल ऑलवेज बी अकॉम्पनीड बाय बीइंग. ये याद रखना है बराबर. तो अगर आपके एक्टिव वॉइस में जो वर्ब है इट इज इन कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस और पास्ट कंटिन्यूस टेंस. कंटिन्यूस का मीनिंग है वहां पे ing फॉर्म के अंदर अगर वर्ब है, तो आपको अगर वो एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस अगर आपको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है तो इन दैट केस द वर्ब विल बी अकॉम्पनीड बाय बीइंग. तो इस केस में क्या बोला है? मीरा इज ईटिंग चॉकलेट, तो यहाँ पे कैसा कन्वर्ट होगा? चॉकलेट इज बीइंग ईटन बाय मीरा. तो यहाँ पे हमेशा आपको ये याद रखना है कि व्हेनेवर द एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस में वर्ब फॉर्म इज इन ing फॉर्म और कंटिन्यूस, प्रेजेंट कंटिन्यूस और पास्ट कंटिन्यूस, आपका पैसिव वॉइस विल बी पैसिव वॉइस के अंदर वर्ब फॉर्म विल ऑलवेज बी अकॉम्पनीड विद बीइंग. दिस इज ट्रिक नंबर 1. ट्रिक नंबर 2 क्या है आपका? अगर आपके एक्टिव वॉइस में वर्ब फॉर्म जो है इज अकॉम्पनीड बाय हैज, had और have, has, had और have, तो आपको जब ये पैसिव वॉइस में आप कन्वर्ट करोगे तो यहां पे has, had, have के साथ साथ you are going to accompany it with being. आपको क्या लगाना है? ये 2 इंपॉर्टेंट ट्रिक आपको याद रखना है. वहां पे दिमाग ज्यादा लगाना ही नहीं है. अगर आपके एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस के अंदर वर्ब फॉर्म इज इन प्रेजेंट कंटिन्यूस और पास्ट कंटिन्यूस, दैट इज इट इज इन ing फॉर्म, देन योर पैसिव वॉइस सेंटेंसेस शुड बी अकॉम्पनीड बाय बीइंग. वो वर्ब फॉर्म जो रहेगा वो बीइंग के साथ अकॉम्पनी होगा. उसी तरह आपका अगर एक्टिव वॉइस में मेन वर्ब इज अकॉम्पनीड बाय हैज, हैव, हैड, देन पैसिव वॉइस के अंदर वो आपको जो भी रहेगा हैज, हैड, हैव विल बी अकॉम्पनीड बाय बीइंग, BEEN. तो ये आपको याद रखना है. ये 2 ट्रिक आपको याद रखना है. जस्ट विल कंटिन्यू विद द रीडिंग.
चेंज ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, वी आर अवेयर विद दिस कि एक्टिव वॉइस को आप पैसिव वॉइस में अगर आप कन्वर्ट करते हो तो हमेशा क्या होगा कि आपका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हो जाएगा. The object of active voice become the subject of the passive voice and the subject become the object of the passive voice. Example, Ram kicked the ball. इस सेंटेंस में आपका राम क्या है, वो सब्जेक्ट है, किक क्या है, आपका वर्ब है, और बॉल क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है. एक्शन किसने किया है, एक्शन किया है राम ने. वो किक इज अ वर्ब और किसके ऊपर एक्शन हो रहा है, बॉल के ऊपर, तो बॉल इज एन ऑब्जेक्ट. अब इस केस में पैसिव वॉइस में अगर इसको कन्वर्ट करना है आपको, देखिए यहाँ पे जो चीज आपने देखी कि यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है बॉल, वो आ गया आपकी सब्जेक्ट की जगह पे, तो क्या हो गया, द बॉल. और राम जो आपका सब्जेक्ट था वो एंड में आ गया, वो क्या हो गया, आपका ऑब्जेक्ट. और किक जो है, जो वर्ब था, उसने अपना फॉर्म एक्टिव से पैसिव वॉइस में जाते वक्त चेंज कर दिया, तो किक क्या हो गया आपका, वॉज किक. ये याद रखना है आपको. It will be according to the sentence. You have to convert your verb का tense has to be converted into different form in the passive voice. कौन से verb में अब we have seen that कि एक होता है आपका transitive verb और एक होता है एक होता है आपका finite verb और एक होता है आपका non finite verb. तो finite verb कौन सा है, जो आपका tense अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस चेंज करता है सिंगुलर से प्लूरल में जाते वक्त, तो उसी तरह एक्टिव से पैसिव वॉइस में जाते वक्त भी वो चेंज होगा. और नॉन फाइनाइट वर्ब कौन सा होता है, जो अपना टेंस चेंज नहीं करता है. तो ये डिपेंडिंग अपॉन द सेंटेंस किस तरीके से आप ड्राफ्ट कर रहे हो, आपको ये याद रखना है. बराबर. नाउ इस सेंटेंस में देखा कि सब्जेक्ट हो गया ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हो गया सब्जेक्ट. नेक्स्ट उस पे जाते हैं. देखिए अपन चेंज ऑफ वर्ब फॉर्म, मैंने अभी आपको बताया कि वर्ब फॉर्म विल गेट चेंज. द वर्ब इन द एक्टिव वॉइस इज चेंज इनटू अ फॉर्म ऑफ बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब. बराबर. सीता इज टेकिंग द डॉग फॉर अ वॉक. The dog is being taken by Sita for a walk. अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया कि अगर आपका एक्टिव वॉइस में वर्ब फॉर्म इज इन कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस और पास्ट कंटिन्यूस, तो आपके पैसिव वॉइस में दैट वर्ब फॉर्म विल बी अकॉम्पनीड बाय बीइंग, B-E-I-N-G. उसी तरह यहाँ देखिए, सीता इज टेकिंग, सीता इज टेकिंग, दैट इज present continuous tense. Is taking is a verb. The dog for a walk. Sita is a subject. बराबर. Dog is an object. Sita is a subject. Dog is a object. और is taking is a present verb है. Is continuous आप is taking is a verb है और कौन से tense में, present continuous tense के अंदर है. तो is a auxiliary verb, taking is a main verb. तो यहाँ पे is taking, यहाँ पे आपका sentence is in present continuous tense, तो that will be accompanied by being. तो देखिए किस तरीके से ये ड्राफ्टिंग हुआ है आपका पैसिव वॉइस. The dog is being taken, is and taking has been converted into being taken. तो सिंपल क्या है, whenever verb form in active voice is in ing form, that is in present continuous और past continuous tense, passive voice में convert होते वक्त it will always be accompanied by be. उसके बाद कुछ examples दिए जहाँ आपको जो verb form है वो किस तरीके से change होंगे. तो यहाँ पे जो मैंने जो ट्रिक आपको बताई है, पहले उस ट्रिक को यहाँ पे देख लेते. देखिए यहाँ पे सबसे पहले बोला है, ये है आपका present continuous और ये है आपका पास्ट कंटिन्यूस. प्रेजेंट कंटिन्यूस और ये है आपका पास्ट कंटिन्यूस. प्रेजेंट कंटिन्यूस में आप देखिए क्या दिया हुआ है, एम थ्रोइंग, इज थ्रोइंग, आर थ्रोइंग, ing कंटिन्यूस फॉर्म. इट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू एम बीइंग थ्रोन, इज बीइंग थ्रोन, आर बीइंग थ्रोन. तो यहाँ पे क्या हो गया, throwing has become thrown और is accompanied with being. मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया कि whenever
अगर आपका वर्ब फॉर्म कंटिन्यूस टेंस में प्रेजेंट कंटिन्यूस और पास्ट कंटिन्यूस, तो पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते वक्त हमेशा दैट वर्ब फॉर्म विल बी अकॉम्पनीड बाय BEING बीइंग। उसी तरह यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूस देखिए, वॉज थ्रोइंग और वेर थ्रोइंग, अगेन ING, it has been converted into was being thrown, were being thrown। यहाँ पे भी it has been accompanied by being। दूसरा ट्रिक मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर आपके एक्टिव वॉइस में जो मेन वर्ब है इट हैज बीन अकॉम्पनीड बाय हैव, हैज और हैड, तो पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते वक्त इट विल बी अकॉम्पनीड बाय बी, BEEN। देखिए यहाँ पे कहाँ पे है, you can see here present perfect, उसी तरह past perfect, बराबर। अब इस सेंटेंस में और फ्यूचर परफेक्ट, ये इस सेंटेंस में आप देख सकते हो क्या बोला गया है। देखिए हैज थ्रोन, हैव थ्रोन, क्या हो गया, हैज बीन थ्रोन, have been thrown, it has been accompanied with being, BEE। and उसी तरह had thrown, had been thrown, will have thrown, shall have thrown, will have been thrown, shall have been thrown। तो this is how you have to remember, ये important चीज है जो आपको याद रखना है, बराबर। और बाकी के जनरल रूल है जहाँ पे अकॉर्डिंग डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द सेंटेंस यू हैव टू कन्वर्ट अ वर्ब फॉर्म फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस, बराबर। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स है जहाँ पे कुछ वर्ब फॉर्म चेंज होंगे, कुछ वर्ब फॉर्म चेंज नहीं होंगे। वन बाय वन वी हैव टू रिफर ऑल दिस। अब क्या बोल रहा है देखिए, चेंज ऑफ प्रोनाउन, प्रोनाउन में चेंजेस किस तरीके से आएगा, आई, यू, ही, शी, इट, वी, यू, दे, ये अगर प्रोनाउन यूज हो रहे हैं तो हाउ इट विल बी चेंज इन पैसिव वॉइस। आई हो जाएगा मी, यू हो जाएगा यू, ही हो जाएगा हिम, शी हो जाएगा हर, इट विल रिमेन सेम, यू विल बिकम, वी विल बिकम अस, यू विल रिमेन सेम एंड दे विल बिकम देम। दिस इज हाउ द pronoun will change from active voice sentence to passive voice sentence। एग्जाम्पल ले लेते हैं, I like the TV program with positive content। I, यहाँ पे I will change to me, यहाँ पे I is a subject, like is a verb और TV program is an object। देखिए पैसिव वॉइस में किस तरीके से चेंज हुआ, TV program with positive content are liked by me, तो यहाँ पे I क्या हो गया, it has been converted into me, you have to remember this। थर्ड क्या बोल रहा है देखिए, एडिशन ऑफ द वर्ड by, the passive verb is followed by plus doer, that is a subject। if the doer is not known or irrelevant, it is omitted in the passive voice। example, Lalita teaches poor children every weekend। यहाँ पे ललिता is a subject, teaches is an verb और poor children is an object, बराबर। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, poor children are taught by ललिता, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आप ललिता को accompany कर रहे by verb form by every weekend, बराबर। very weekend लिखा हुआ है, it should be every weekend। उसी तरह someone broke all the pots, यहाँ पे someone कौन है पता नहीं, यहाँ पे सब्जेक्ट के बारे में डिटेल पता नहीं है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि इवन इफ यू ओमिट दैट इन पैसिव वॉइस इज ओके। तो यहाँ पे क्या बोला गया है देखिए, ऑल द पॉट्स वेर ब्रोकन बाय समवन लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर जो भी पर्सन जो करने वाला है उसके बारे में आपको पता नहीं है या वो इररिलेवेंट है, तो आप उसको पैसिव वॉइस के अंदर ओमिट कर सकते हो। जैसे इस एग्जांपल में दिया है, समवन ब्रोक ऑल द पॉट्स, तो यहाँ पे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते वक्त क्या लिखा है, ब्रोक जो हो गया वेर ब्रोकन हो गया, और क्या बोला, ऑल द पॉट्स वेर ब्रोकन बाय समवन लगाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे क्या ओमिट कर दिया उन्होंने, बाय समवन इज ओमिटेड, गॉट इट। उसके बाद क्या बोल रहा है,
Where there are two objects in an active sentence, there are two possible passive sentences. दो object we have seen. One is a direct object and one is an indirect object. अगर एक पर्टिकुलर सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट है तो पैसिव सेंटेंस भी, पैसिव वॉइस सेंटेंस भी दो पॉसिबिलिटी हो सकती है. जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल क्या बोला है, द फार्मर गेव द काउस सम हे एंड ओट्स. अब इस केस में यू कैन सी दैट द फार्मर इज अ सब्जेक्ट, gave is a verb, cow is an object, some hay and oats is also an object. यहाँ पे cow जो है आपका indirect object है और some hay and oats आपके direct object है. verb gave और farmer आपका क्या है, subject. तो यहाँ पे क्या बोला, अगर सेंटेंसेस में इफ देर आर टू ऑब्जेक्ट, वन इज अ डायरेक्ट एंड वन इज एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो वहां पे पैसिव सेंटेंसेस की दो पॉसिबिलिटी हो सकती है. क्या बोला है देखिए, द काउ वेर गिवन, गेव क्या हो गया, गेव हैज बिकम वेर गिवन. ऑब्जेक्ट क्या था, काउ, वो हो गया अब आपका सब्जेक्ट. द काउ वेर गिवन सम हे एंड ओट्स बाय द फार्मर. फार्मर क्या है आपका सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस में, यहाँ पे क्या हो गया, वो आपका हो गया ऑब्जेक्ट. बराबर. तो इस तरीके से आप एक्टिव वॉइस जिसमें दो ऑब्जेक्ट होते हैं उसको चेंज कर सकते हैं. दूसरा क्या बोला है देखिए, द फार्मर गेव सम हे एंड ओट्स टू द काउ. अब इस सेंटेंस में द फार्मर इज अगेन अ सब्जेक्ट, गेव इज अ वर्ब, some hay and oats is an object, और to the cow ये क्या हो गया आपका, to the cow ये हो गया ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन. जो अपन ने देखा है ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन, वहां पे सेंटेंसेस का मीनिंग दोनों भी एक्टिव वॉइस नंबर 1 एक्टिव वॉइस नंबर 2 में सेम है, लेकिन उनका प्रेजेंटेशन अलग हो गया है. यहाँ पे जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट था वो आपके सेकेंड एक्टिव वॉइस सेंटेंस में हो गया ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन. वो सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस किस तरीके से बनाया देखिए, सम हे एंड ओट्स जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट था, प्रीवियस सेंटेंस में जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट था वो आपका सब्जेक्ट हो गया था. यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट चेंज हो गया है, जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट था वो हो गया आपका ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन. तो उसको हाथ नहीं लगाया, पहले हाथ किसको लगाया, आपके ऑब्जेक्ट को. ऑब्जेक्ट क्या है, सम हे एंड ओट्स वेर गिवन, गेव क्या हो गया, वेर गिवन टू द काउस बाय द फार्मर. तो इस तरीके से आपको ये ध्यान रखना है कि अगर सेंटेंसेस के अंदर दो ऑब्जेक्ट आ रहे हैं तो आपको किस तरीके से वो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे लाना है. बराबर. उसके बाद वो क्या बोल रहा है, थर्ड इंपॉर्टेंट रूल इज चेंजिंग इंटरोगेटिव सेंटेंसेस इनटू पैसिव. एक चीज अब इंपॉर्टेंट याद रखना है, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस यानी क्वेश्चन बेस्ड सेंटेंस, या जहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, तो क्वेश्चन बेस्ड एक्टिव सेंटेंस शुड ऑलवेज बी आंसर्ड इन पैसिव वॉइस क्वेश्चन बेस्ड सेंटेंस. तो जो एक्टिव वॉइस में क्वेश्चन है, क्वेश्चन मार्क पैसिव वॉइस में भी रहेगा और उसका ड्राफ्टिंग भी इस तरीके से करेंगे कि वो भी पैसिव वॉइस इज आस्किंग यू द क्वेश्चन, लेकिन दोनों के फॉर्मेट अलग अलग है. किस तरीके से बोला गया है देखिए, द प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब डू, डज, डिड do not appear in the passive form. They get converted to the form of verb to be. तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, अगर do, does और did है तो वो आपके पैसिव सेंटेंस में नहीं आएंगे, पैसिव फॉर्म सेंटेंस में नहीं आएंगे. बराबर. क्या बोल रहा है देखिए, does सीमा लाइक पेंटिंग, क्या सीमा को पेंटिंग पसंद है. पैसिव वॉइस में भी क्वेश्चन बेस्ड ही सेंटेंस ड्राफ्ट किया गया है, लेकिन किस तरीके से ड्राफ्ट किया गया है देखिए, इज पेंटिंग लाइक्ड बाय सीमा. पहले सेंटेंस में अगर आप देखोगे तो सीमा इज अ सब्जेक्ट, लाइक इज अ वर्ब एंड पेंटिंग इज एन ऑब्जेक्ट. आपने पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते वक्त ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लेके आया, लेकिन क्वेश्चन का ड्राफ्टिंग कैसा किया है, इज पेंटिंग
लाइट बाय सीमा, क्या सीमा को पेंटिंग पसंद है, वही चीज एक्टिव वॉइस में बोला था, द सीमा लाइक पेंटिंग। चेंज क्या हो गया, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह आ गया, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह आ गया, और क्वेश्चन किस तरीके से स्टार्ट कर रहे, डस क्या बन गया, इज। उन्होंने बोला है कि डू, डस और डिड नॉट अपीयर इन द पैसिव फॉर्म। अगर क्वेश्चन इन चीजों से स्टार्ट होते हैं तो वो पैसिव फॉर्म में नहीं आएंगे। और एक क्वेश्चन क्या ले रहा है, देखिए, डिड सीमा लाइक पेंटिंग, क्या सीमा को पेंटिंग पसंद आई, वॉज पेंटिंग लाइक बाय सीमा। देखिए दोनों क्वेश्चन का, डज सीमा लाइक पेंटिंग, क्या सीमा को पेंटिंग पसंद है, पहले क्वेश्चन का मीनिंग क्या है, क्या सीमा को पेंटिंग पसंद है, और सेकंड क्वेश्चन क्या है, डिड सीमा लाइक पेंटिंग, क्या सीमा को पेंटिंग पसंद आई। दोनों का मतलब मीनिंग अलग अलग है। पहले केस में क्या बोल रहा है, क्या सीमा को पेंटिंग पसंद है, दूसरे केस में क्या सीमा को पेंटिंग पसंद आई। तो पहला पैसिव वॉइस आंसर किस तरीके से किया गया है, इज पेंटिंग लाइक बाय सीमा, क्या सीमा को पेंटिंग पसंद है, और दूसरे केस में वॉज पेंटिंग लाइक बाय सीमा, क्या सीमा को पेंटिंग पसंद आई। तो सेकंड और फर्स्ट केस में ये डिफरेंस है। थर्ड रूल क्या बोल रहा है, द वर्ब हैज, हैव, हैड, विल, शाल, कैन, मे do not change their position at the beginning of the sentence when the active voice is changed to passive voice. Has, have, had, will, shall, can, may. अगर ये इंटरोगेटिव सेंटेंस का एक्टिव वॉइस सेंटेंस है और उसमें वो सेंटेंस हैज, हैड, हैव, शाल, कैन, मे से स्टार्ट हो रहा है, तो पैसिव वॉइस में ये वर्ड्स का पोजीशन चेंज नहीं होगा। देखिए, has he done his homework, has his homework been done by him। देखिए यहाँ पे has का पोजीशन एक्टिव से पैसिव वॉइस में आते वक्त चेंज नहीं हुआ। ही क्या था यहाँ पे आपका सब्जेक्ट, डन क्या था आपका वर्ब, हिज होमवर्क क्या था आपका ऑब्जेक्ट। तो हैज का पोजीशन रहा सेम, ऑब्जेक्ट हो गया आपका सब्जेक्ट, डन हो गया बीइंग डन बाय हिम, बराबर। देखिए मैंने क्या बोला था, एक इंपॉर्टेंट रूल बोला था कि अगर कोई भी पर्टिकुलर एक्टिव वॉइस के अंदर हैज, हैव या हैड यूज हो रहा है तो पैसिव वॉइस के अंदर इट विल बी अकॉम्पनीड बाय बीइंग। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन क्या है, हैज ही डन हिज होमवर्क। तो क्वेश्चन किस तरीके से स्टार्ट हो रहा है, हैज, यानी आपका एक्टिव वॉइस में हैज है, तो पैसिव वॉइस में ये जरूरी है, इट शुड बी अकॉम्पनीड बाय बीइंग, BEEN। किस तरीके से ड्राफ्टिंग हुआ है देखिए, हैज, होमवर्क जो एक्टिव वॉइस में आपका ऑब्जेक्ट था वो हो गया सब्जेक्ट, डन जो हो गया आपका बीन डन। मैंने आपको बोला कि हैज विल बी अकॉम्पनीड बाय बीन बाय हिम, तो दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर। सेकंड क्या है देखिए, विल सलमा ईट द मैंगो, पैसिव वॉइस, विल द मैंगो बी ईटन बाय सलमा, बराबर। थर्ड इंटरोगेटिव क्वेश्चन एक्टिव वॉइस में अगर है तो थर्ड इंपॉर्टेंट रूल क्या है, द क्वेश्चन वर्ड्स व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ, व्हाट डू नॉट चेंज देयर पोजीशन एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस व्हेन एक्टिव वॉइस इज चेंज इनटू पैसिव वॉइस। वही चीज बता रहा है जो अभी थोड़ी देर पहले इन वर्ड्स के बारे में बताया, हैज, हैव, हैड, विल, शाल, कैन, मे। उसी तरह यहाँ पे क्या बोल रहा है, व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ और व्हाट अगर आपके वर्ड्स में यूज हो रहे, वो पे क्या बोल रहा है, डू नॉट चेंज देयर पोजीशन एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस व्हेन एक्टिव वॉइस इज चेंज इनटू पैसिव वॉइस। देखिए, हु चेंजेस टू बाय हुम और हुम चेंजेस टू हु। अगर आपके एक्टिव वॉइस में हु यूज हो रहा है तो इट विल बी चेंज टू बाय हुम, और अगर एक्टिव वॉइस में हुम यूज हो रहा है तो पैसिव वॉइस में इट विल बी कन्वर्टेड इनटू हु। देखिए, व्हाट डिड द लीडर से टू हिज फॉलोअर, व्हाट डिड द लीडर से, क्या बोला गया है कि एक्टिव वॉइस में अगर व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर,
और हाउ यूज हो रहा है तो उनका पोजीशन चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे भी व्हाट का पोजीशन जो है वो सेम एज इट इज है, उसका पोजीशन चेंज नहीं हुआ। क्या हो रहा है, व्हाट वाज सेड बाय द लीडर टू हिज फॉलोअर। whom did you greet at the party, whom did you greet at the party, किसको आपने ग्रीटिंग्स दिया पार्टी के ऊपर। तो यहाँ पे whom क्या बोला गया है, whom will be changed to who were greeted by you at the party। तो this is what you have to remember। Then there is a changing imperative sentences into passive voice। imperative sentences कौन कौन से होते हैं, imperative sentences के बारे में मैंने आपको बताया था कि imperative sentences यानी वो particular sentences जहाँ पे आप या तो suggestion दे रहे हो, या तो advice दे रहे हो, या तो आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, या तो फिर आप कमांड कर रहे हो। ये चार चीजें मैंने आप लोगों को बताई थी कि इस केस के अंदर अगर कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर where there is a advice, where there is a suggestion, where there is a request or where there is a command, तो that is called as an imperative sentence। तो यहाँ पे क्या बोला गया है देखिए, imperative sentences are sentences which expresses the advice, suggestion, request or command। close the door, बराबर, please give me the bottle, request, pick up the phone, बराबर, we should exercise every day, suggestion। तो ये सब क्या हो गए आपके imperative sentence। imperative sentence कौन से होते हैं, जहाँ पे आप किसी को या तो रिक्वेस्ट कर रहे हो, सजेशन दे रहे हो, कमांड कर रहे हो, या फिर एडवाइस दे रहे हो। तो ऐसे सेंटेंसेस को यू विल कॉल इट एज एन imperative sentence। अगर आपके imperative sentence का एक्टिव वॉइस है तो उसको पैसिव वॉइस में किस तरीके से कन्वर्ट किया गया है, जस्ट रिफर दैट। These sentences express advice, request और command। क्या बोला गया, Please bring me some tea। रूल पहले पढ़ लेते। Generally sentences containing request, अगर आपके imperative sentences में आप किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हो तो क्या बोल रहा है, Have the word please in it। Such sentences start with you are requested to in the passive form। बराबर, ये याद रखना है आपको। अगर आपके रिक्वेस्ट क्वेश्चन है और वो प्लीज से स्टार्ट हो रहा है तो उस केस के अंदर आप पैसिव वॉइस में उसको कन्वर्ट करते वक्त क्या लिखेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू। याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। imperative sentences के rule for conversion from active to passive voice। अगर imperative sentences is as regards to request, अगर request है और please use हो रहा है, बराबर, तो यहाँ पे एक्टिव वॉइस में प्लीज यूज हो रहा है तो पैसिव वॉइस में आप किस तरीके से स्टार्ट करोगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू। क्या बोल रहा है देखिए, प्लीज ब्रिंग मी सम टी, ये हो गया आपका रिक्वेस्ट। तो ये किस तरीके से स्टार्ट होगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू ब्रिंग मी सम टी। उसी तरह सेकेंड रूल क्या है, इंपरेटिव सेंटेंसेस कंटेनिंग एडवाइस, यानी अगर एडवाइस रिलेटेड कोई पर्टिकुलर सेंटेंस है तो वो क्या बोल रहा है, स्टार्ट विद यू आर एडवाइज टू इन द पैसिव वॉइस। तो आपको ये बराबर ध्यान देना है कि वो रिक्वेस्ट वाला इंपेरेटिव सेंटेंस है या फिर एडवाइस वाला इंपेरेटिव सेंटेंस है। अगर एडवाइस वाला इंपेरेटिव सेंटेंस है तो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते वक्त आप कौन से वर्ड यूज करोगे, यू आर गोइंग टू यूज द वर्ड यू आर एडवाइज टू, यू आर एडवाइज टू, आप ये पैसिव वॉइस में यूज करोगे। विल जस्ट रिफर द एग्जाम्पल, डू योर वर्क ऑन टाइम, आपको एडवाइस दे रहा है कि आप आपका काम समय पे किया करो। तो यू आर एडवाइज टू डू योर होमवर्क और वर्क ऑन टाइम। डू नॉट ड्रिंक एंड ड्राइव, यू आर एडवाइज नॉट टू ड्रिंक एंड ड्राइव। तो ये दोनों सेंटेंस में आप देखोगे कि सेंटेंस पैसिव वॉइस में कन्वर्ट होते वक्त किस तरीके से स्टार्ट हुआ है, यू आर एडवाइज टू, यू आर एडवाइज टू आपने दोनों सेंटेंसेस में आपने लगाया है, यू आर एडवाइज टू या यू आर एडवाइज नॉट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रूल एज रिगार्ड्स टू इंपेरेटिव सेंटेंस क्या है,
imperative sentences containing command or order generally start with let in passive voice। यानी वो बोल रहा है अगर आपका imperative sentences जो है वो अगर रिक्वेस्ट है तो आप प्लीज को यू आर रिक्वेस्टेड टू कन्वर्ट करेंगे। अगर वो एडवाइस है तो आप पैसिव वॉइस का स्टार्ट करेंगे यू आर एडवाइज टू। और अगर कमांडिंग रिलेटेड क्वेश्चन, कमांडिंग रिलेटेड आपका सेंटेंस है तो आपका पैसिव वॉइस सेंटेंस विल स्टार्ट विथ लेट। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ब्रिंग इन द कल्प्रिट, आपने ऑर्डर दिया, कमांड किया कि कल्प्रिट को, गुनेगार को लेके आओ, तो पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते वक्त क्या बोल रहा है, लेट द कल्प्रिट बी ब्रॉट इन। तो किस तरीके से स्टार्ट हो रहा है, लेट से स्टार्ट हो रहा है। सेकंड, कुक द फूड, ऑर्डर किया है आपको, कुक द फूड, फूड बनाओ, बराबर। तो पैसिव वॉइस में क्या बोल रहा है, लेट द फूड बी कुक, लेट द फूड बी कुक। तो कमांडिंग अगर कुछ कमांडिंग रिलेटेड अगर आपके सेंटेंसेस है तो वो पैसिव वॉइस में कन्वर्ट होते वक्त लेट से स्टार्ट होंगे। और फोर्थ क्या बोला गया है, देखिए, यू कैन चेंज द सेंटेंसेस कंटेनिंग कमांड और ऑर्डर इनटू पैसिव वॉइस यूजिंग योर ऑर्डर टू। एक और चीज क्या बोल रहा है, अगर आपका एक्टिव वॉइस में आप कमांड दे रहे हो, आप किसी को ऑर्डर दे रहे हो, तो आप आपके पैसिव वॉइस में लेट यूज कर सकते हो, या फिर आप यू आर ordered to, you are ordered to भी यूज कर सकते हो इंस्टेड ऑफ लेट, बराबर। फोर्थ इंपॉर्टेंट रूल क्या है, इंपरेटिव सेंटेंसेस कंटेनिंग सजेशंस आर चेंज इन पैसिव वॉइस बाय एडिंग द मॉडल वर्ब शुड, सजेस्टिंग करेक्टनेस एंड ऑब्लिगेशन। मॉडल वर्ब, मॉडल वर्ब वी हैव ऑलरेडी रिफर्ड। मॉडल वर्ब आपका क्या था, मॉडल वर्ब क्या था, एम, इज, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, ये सब आपके मॉडल वर्ब था। मॉडल वर्ब क्या आपको दर्शाता है, क्या बताता है, एबिलिटी, परमिशन और ऑब्लिगेशन या ड्यूटी। मॉडल वर्ब से ये आपको जनरेट होता है, बराबर। तो दैट इज कॉल्ड एज अ मॉडल वर्ब। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, इंपेरेटिव सेंटेंस कंटेनिंग सजेशन, अगर सजेशन वाले सेंटेंसेस है तो क्या बोल रहा है वो, यू कैन चेंज इनटू पैसिव फॉर्म बाय एडिंग द मॉडल वर्ब शुड। तो आपको क्या यूज करने का बोल रहा है, वो शुड यूज करने के लिए आपको बोल रहा है। एग्जांपल देख लेते हैं। रिस्पेक्ट एल्डर्स इन द फैमिली, ये आपको सजेशन दे रहा है कि बड़ों की रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो आंसर पैसिव वॉइस में किस तरीके से, एल्डर्स इन द फैमिली शुड बी रिस्पेक्टेड, यानी जहां पे आप सजेशन देते हो तो उसमें आपका शुड यूज होना चाहिए व्हाइल कन्वर्टिंग फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस। सेकंड क्या बोल रहा है, फॉलो योर ड्रीम्स, अगेन देयर इज अ सजेशन, योर ड्रीम शुड बी फॉलोड, अगेन व्हाट दे हैव यूज्ड, दे हैव यूज्ड द वर्ड शुड। तो एक और बार ये इंपेरेटिव सेंटेंसेस को कन्वर्जन करने के रूल्स याद रख लेते हैं कि अगर रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट किस तरीके से समझ में आएगा, एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस विल स्टार्ट विथ प्लीज, तो आपको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते वक्त यू शुड यूज यू आर रिक्वेस्टेड टू। अगर इंपेरेटिव सेंटेंसेस आर एज रिगार्ड्स टू गिविंग एडवाइस टू समवन, देन पैसिव वॉइस सेंटेंसेस शुड बी आंसर्ड विथ यू आर एडवाइस टू। अगर एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस के अंदर कमांड यूज किया गया है तो पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते वक्त या तो आप लेट यूज करो या तो फिर यू कैन यूज योर ऑर्डर टू। और लास्ट है, अगर आप किसी को सजेशन दे रहे हो तो सजेशन देते वक्त अगर आप एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हो तो यू शुड यूज शुड। तो ये आपको याद रखना है। फिर है आपका प्रीपोजिशनल सेंटेंसेस। प्रीपोजिशनल सेंटेंसेस के बारे में क्या बोला गया है, देखिए, हालांकि इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है लेकिन दिया है तो एक बार रीड कर लेते हैं। प्रीपोजिशन इन द एक्टिव वॉइस ऑफ द स्टेटमेंट डू नॉट चेंज देयर प्लेस इन द पैसिव वॉइस। अगर प्रीपोजिशन यूज हो रहा है तो उसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते वक्त उसका पोजिशन चेंज करने की जरूरत नहीं है। पेरेंट्स ऑब्जेक्ट टू चिल्ड्रन वॉचिंग एक्टिव मूवीज, यहाँ पे आपका जो प्रीपोजिशन है वो क्या है,
सबसे पहले आपका पेरेंट्स जो है आपका वो सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट टू ये हो गया आपका वर्ब और टू इज अ प्रीपोजिशन, चिल्ड्रन हो गया आपका ऑब्जेक्ट बराबर। और अगेन वॉचिंग इज अ वर्ब, एक्शन मूवीज, वॉचिंग एक्शन मूवीज, तो यहाँ पे क्या है, पेरेंट्स आपका सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट टू चिल्ड्रन आपका ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट टू आपका वर्ब है, वॉचिंग इज ऑल्सो योर वर्ब। तो हाउ व्हाट इट सेज, प्रीपोजिशन इन द एक्टिव वॉइस ऑफ द स्टेटमेंट डू नॉट चेंज देयर प्लेस, वो अपना प्लेस चेंज नहीं करेगा। तो यहाँ पे प्रीपोजिशन किसके बाद में लगा है, आपके ऑब्जेक्ट के बाद में लगा है, तो वो ऑब्जेक्ट के बाद में ही पैसिव वॉइस के अंदर रहेगा। देखिए किस तरीके से बोला गया है, चिल्ड्रन वॉचिंग एक्शन मूवीज, चिल्ड्रन आपका ऑब्जेक्ट था जो हो गया पैसिव वॉइस में आपका सब्जेक्ट, वॉचिंग एक्शन मूवीज इज ऑब्जेक्टेड बाय द पेरेंट, यहाँ पे इज ऑब्जेक्टेड टू, आप याद रखिए इज ऑब्जेक्टेड टू, तो यहाँ पे भी क्या था ऑब्जेक्ट टू, यहाँ पे भी क्या रहा वो ऑब्जेक्टेड टू, ऑब्जेक्ट के बाजू में ही रहा प्रीपोजिशन, उसने अपना पोजीशन चेंज नहीं किया। उसके बाद आते हैं मॉडल्स। मॉडल्स क्या बोला गया है कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि जो एबिलिटी, परमिशन और ऑब्लिगेशन बताता है तो दैट इज कॉल्ड एज अ मॉडल्स। मॉडल्स के बारे में क्या रूल है, मॉडल्स कैन, could, should, etc. do not change when changing active into passive. The rich should help the poor. The poor should be helped by the rich. Should, यहाँ पे भी should, लेकिन सिर्फ क्या हो गया, should has become should be. उसी तरह student out to listen to the teacher. Out to, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, the teacher out to be. देखिए दोनों केसेस के अंदर शुड क्या हो गया, शुड बी हो गया, और आउट टू क्या हो गया, आउट टू बी हो गया बराबर, और बाकी के आपके ऑब्जेक्ट हो गए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हो गए ऑब्जेक्ट, तो ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद आते ओनली ट्रांजिटिव वर्ब कैन बी चेंज इनटू पैसिव फॉर्म, इनट्रांजिटिव वर्ब रिमेन एक्टिव, रिमेन इन द एक्टिव फॉर्म ओनली। तो ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव, तो ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब के बारे में भी वी हैव रेड। व्हाट इज अ ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव के बारे में क्या बोला गया है कि ट्रांजिटिव वर्ब आर एक्शन वर्ब दैट ऑल, तो वाटर फ्लोज अंडर द ब्रिज, वाटर फ्लोज अंडर द ब्रिज, वाटर इज अ सब्जेक्ट, फ्लो इज अ वर्ब and under the bridge is a additional information about the subject that is water but object is missing। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखिए ये याद रखना है, नो पैसिव वॉइस इज पॉसिबल फॉर द अबव सेंटेंसेस। तो यहाँ पे जो वी हैव रेड इन द फर्स्ट लेक्चर टाइप्स ऑफ वर्ब, उसमें दिया हुआ है, देखिए ट्रांजिटिव वर्ब एंड इनट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब विल हैव सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, whereas in the case of an intransitive verb the object will be missing। तो in such case where object will be missing, तो वहां पे आपका एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस जो है वो जनरली विल रिमेन सेम। उसके बाद लास्ट इंपॉर्टेंट केस अंडर दिस एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में क्या दिया हुआ है, देखिए पैसिव वॉइस चेंजिंग पैसिव टू एक्टिव वॉइस। सिंपल, जो एक्टिव से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के अपन ने जो रूल देखे वही पैसिव टू एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करते वक्त वो सभी रूल क्या हो जाएंगे, रिवर्स हो जाएंगे। When you change a sentence from passive to active voice, reverse the position of the subject and the object, obviously, क्योंकि आपने एक्टिव से पैसिव वॉइस में जाते वक्त तीन पार्ट में डिवाइड किया है, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। आपने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लिया, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना लिया, और वर्ब का जो है टेंस आपने अकॉर्डिंगली चेंज किया। यू कैन आइडेंटिफाई द डूअर बाय लोकेटिंग द बाय द फ्रेज appropriate changes in the form of verb must be made. At times the doer is not identified in the sentence. In such case you have to presume a doer from the context of the sentence. Very important. Active to passive voice में convert करते वक्त एक important rule दिया गया था, बोला गया था अगर doer important नहीं है, करने वाला important नहीं है, या फिर करने वाले को आपको बताना नहीं है, तो आप उसको ignore कर सकते हो in converting a active to passive voice।
तो अब आप यहाँ पे पैसिव टू एक्टिव वॉइस कर रहे हैं, तो फिर से अगर आपके पैसिव वॉइस में डूअर दिया नहीं है तो आप डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द सेंटेंस आप एज्यूम कर सकते हो और उस डूअर को आप आपके एक्टिव वॉइस में ला सकते हो एज अ सब्जेक्ट। कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स दिए गए, विल रीड दैट। द रूल्स अप्लाइड टू चेंज एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव हैव टू बी इन्वर्टेड टू चेंज पैसिव इनटू एक्टिव वॉइस। द बुक is being read by most of the class, is being read by most of the class, बराबर। तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया कंटिन्यूस टेंस। मैंने आपको बताया था कि अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस या पास्ट कंटिन्यूस का वर्ब फॉर्म है यानी आईएनजी फॉर्म है तो आप पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते वक्त बीइंग यूज करोगे, जो यहाँ पे यूज हो रहा है पैसिव वॉइस के अंदर। तो क्या बोला गया है, देखिए, द बुक is being read by most of the class। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, देखिए, the book is an object on which the action is performed, subject in the passive sentence, and by most of the class, subject who performs the action, object in this sentence। यानी ये पैसिव वॉइस में ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। तो आपने ये पहचान लिया कि आपके ये जो पैसिव वॉइस सेंटेंस के अंदर आपका ऑब्जेक्ट कौन सा है और सब्जेक्ट कौन सा है, आप सिर्फ उसको आपको कन्वर्ट करना है। तो क्या बोल रहा है, देखिए, मोस्ट ऑफ द क्लास, मोस्ट ऑफ द क्लास जो आपके पैसिव वॉइस में जो था आपका ऑब्जेक्ट वो हो गया आपका सब्जेक्ट। इज रीडिंग हो गया आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। The book, simple, most of the class is reading the book, बराबर। सेकंड क्या बोल रहा है, देखिए, result will be published in the next journal, result will be published in the next journal, बराबर। अभी यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज, किसका रिजल्ट, डूअर मिसिंग है इस केस के अंदर। रिजल्ट विल बी पब्लिश्ड इन द नेक्स्ट जर्नल। रिजल्ट जो है आपका अगर एक्टिव वॉइस में रहेगा तो वो आपका ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये पैसिव वॉइस है तो इन्होंने रिजल्ट को क्या बताया, यहाँ पे सब्जेक्ट बताया। तो रिजल्ट जिस पे एक्शन हो रहा है, करने वाला कौन है, इस सेंटेंस में दिया नहीं है। तो क्या रूल बोल रहा है कि अगर डूअर दिया नहीं है तो आपको डूअर को प्रिज्यूम करना है, अज्यूम करना है। तो इस सेंटेंस में आप देखिए, तो यहाँ पे इन्होंने प्रिज्यूम क्या किया है, डूअर दिया नहीं है तो इन्होंने सब्जेक्ट किसको बनाया, द रिसर्चर विल पब्लिश द रिजल्ट इन द जर्नल। तो यहाँ पे आपको एक्शन करने वाला दिया नहीं था तो उन्होंने पैसिव से एक्टिव में कन्वर्ट करते वक्त यहाँ पे करने वाला, एक्शन करने वाला डूअर को प्रिज्यूम कर लिया। किसको बनाया, डूअर, रिसर्चर। सेकंड क्या बोल रहे हैं, देखिए, नेक्स्ट, सॉरी, अ पॉलिसी ऑफ व्हाइट वॉशिंग एंड कवर अप हैज बीन परस्यूड by the CIA director and his close advisor, बराबर। A policy of whitewashing and cover up has been pursued by the CIA director and his close advisor। तो करने वाले कौन है, CIA director and close advisor। क्या करने वाले, a policy of whitewashing and cover up। तो इसको कन्वर्ट करना है एक्टिव वॉइस में। The CIA director and his close advisor have pursued a policy of whitewashing and cover up। एक और इम्पोर्टेंट रूल, मैंने आपको बताया था कि अगर आपके एक्टिव वॉइस के अंदर आप हैव, हैज या हैड यूज कर रहे हो तो पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते वक्त हैज या हैव या हैड विल बी अकॉम्पनीड बाय बीइंग, BEEN। तो देखिए यहाँ पे पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस में उन्होंने यूज किया है, क्या यूज किया है, हैज बीन यूज किया है ना। तो ये आपको एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करते वक्त बीइंग को रिमूव कर देना है। तो किस तरीके से सेंटेंस बनाया, देखिए, द CIA director and his close advisor have pursued, they have removed being, a policy of whitewashing and cover up. Last, mistakes were made by agent, mistake by, देखिए क्या बोला है, मिस्टेक्स वेर मेड बाय
एजेंट स्पेसिफाई नहीं किया गया है। अब यहाँ पे एजेंट स्पेसिफाई नहीं किया गया है तो आपको यहाँ पे एज्यूम करना है, देखिए एजेंट इज नॉट स्पेसिफाइड। तो क्या बोल रहा है, वी मेड मिस्टेक्स एक हो सकता है, या फिर वी की जगह क्या लिख सकते हैं, द एजेंट वी इज मेड द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। अभी यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आपको अगर डूअर दिया नहीं है तो आप डूअर को कोई भी अज्यूम कर सकते हो। तो यहाँ पे उन्होंने अज्यूम क्या किया है, वी मेड अ मिस्टेक। आप इस तरीके से आपके पैसिव को एक्टिव में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये आपके इंपॉर्टेंट रूल्स है फॉर द पर्पज ऑफ कन्वर्टिंग योर एक्टिव टू पैसिव वॉइस। मैंने आप लोगों को कल 2 एक्सरसाइज दी थी, आज भी 2 एक्सरसाइज दे रहा हूँ। रिफर टू पेज नंबर 2.23, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। आपको ये पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। और क्वेश्चन नंबर 5, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू एक्टिव वॉइस, एक्टिव टू पैसिव। तो पैसिव टू एक्टिव एंड एक्टिव टू पैसिव। तो ये 2 क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 गिवन ऑन पेज नंबर 2.23 आपको कंप्लीट करना है इन वर्क। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क मी।